सत्संग जी, प्रेम से कहना, सिंसियर विद लव। एक बार फिर एडिलेड शहर में सत्संग करने का ये अवसर मिल रहा है, जहां 2024 में आना हुआ और फिर 2 वर्षों बाद आप सबके बीच यहाँ पहुंचकर बहुत ही खुशी भी महसूस हो रही है। और निरंतर ये जो आवाज़ दी जा रही है सदगुरु द्वारा, मिशन द्वारा, कि खुद की पहचान कर ली जाए, क्योंकि जब अपनी असली पहचान मिल जाती है तो जितने भरम भुलेखे जो मेरे जीवन की गाड़ी अभी तक चला रहे हैं, उन भरम भुलेखों से मैं निजात पा लेता हूँ। The moment my true identity is revealed to me, the moment I realize who really am I, the moment this enlightenment dawns upon me, is the moment when I begin to start living with the truth. I've said it in the past that people talk about selfishness as being something wrong. अक्सर हमने सुना है कि स्वार्थी होना गलत है। तो कुछ समय पहले दास ने भाव रखे, आज क्योंकि जिक्र स्वयं की पहचान के ऊपर चल रहा है, तो वही बात याद आ रही है कि स्वार्थ, सेल्फिशनेस, इसको क्योंकि समझा ही नहीं गया इसलिए गलत है। We haven't really understood what selfishness is, hence it is wrong. जिसने स्वयं का अर्थ जान लिया वो सही मायनों में स्वार्थी हुआ। The one who has realized his or her own true self is selfish. And when I realize that I'm not this limited existence, I'm not this identity, I'm not this body, I'm not this who really I think I am, but I'm part of this limitless, this boundless, this whole. I'm a drop which is part of the entire ocean. When this realization dawns upon me, then my selfishness will also become boundless. My selfishness will no longer remain limited to my own individual gains, my own individual interests, because my own individuality would seem or would become a limited identity for myself. I would realize that my identity, myself, who I really am, is this boundless whole. So whenever I will be in a moment of selfishness, I will be seeking the interest of this entire whole and not just a part I used to believe I am. जब अपना अर्थ मुझे पता चल जाता है तो मेरा स्वार्थी होना भी कल्याणकारी हो जाता है, क्योंकि अपना अर्थ मुझे पता चल गया। कल तक जब तक मैं समझ रहा था कि ये शरीर मैं हूं, ये परिवार मेरा है, ये नौकरी मेरी है, ये धन मेरा है, तो मेरा स्वार्थी होना सिर्फ इसी को बढ़ाना, इसी की पालन पोषण के बारे में सोचना होता था। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, अपनी धन दौलत को बढ़ा लेना, अपनी संपत्ति को बढ़ा लेना, मेरा स्वार्थ इन सब चीजों में बंधा हुआ होता था। और जब ये समझ आया कि मैं तो इस पूर्ण का एक हिस्सा हूं, ये जितनी खलकत दिख रही है, जितने
चलते फिरते मानव दिख रहे हैं, ये सब मेरा ही रूप है, मैं इनका ही रूप हूं, तो फिर मेरा स्वार्थ भी सबके कल्याण वाले भाव बन जाते हैं। इसलिए शुरू से सुना है कि संतों ने सबका भला मांगा, सबके कल्याण की कामना की, क्योंकि अपना अर्थ पता चल गया कि ये सीमित मैं मेरा अर्थ नहीं है, मेरा अस्तित्व नहीं है, ये पूरे का पूरा कुटुंब मेरा है। तो अब जब मैं स्वार्थी हुआ तो मैं सबके लिए स्वार्थी हुआ, सबके कल्याण के लिए, भलाई के लिए, खुशी के लिए, अमन के लिए मैं कामना कर रहा हूं। When I realized that I'm just not a limited existence, but a part of the entire whole, that you are me, I am you, then my selfishness will be a call for peace for everyone that is existing, because I cannot be at peace unless you are at peace. I cannot be in a state of bliss unless you are in a state of bliss. तो इसलिए संतों ने सबके ही भले की कामना की। We have seen saints and sages, they've only prayed for peace for all, love for all, respect for all, a world which is a family, one family, where only love is the foundation. And that prayer, that call, that want, that desire for a world without walls, for a world, for a family to have its foundation rooted in love, this desire, this prayer comes from the realization that we all are one, the realization of oneness, that I am not separate. I am not an entity living in isolation. We are all part of this one. And once we realize this one, we see the oneness that connects each other. But humanity, as we see, is living far, far away from this simple truth. We no longer care for this truth. We no longer have the desire to know this truth. We are happy with the identity, with the self that we believe ourselves to be. I'm happy being a Hindu, I'm happy being a Muslim, I'm happy being a Christian, I'm happy being an Australian, I'm happy being an Indian. But nobody's going beyond those labels, those stamps, and trying to reach to the point where we all are one. God's own creation, humans, इको नूर है सब दे अंदर। हम खुश हैं हिंदू बनने में, मुसलमान बनने में, सिख बनने में, ईसाई बनने में। पहचान नहीं है, हम स्वार्थी भी ठीक से नहीं हो पा रहे। ठीक से स्वार्थी जो हो गया वो भी ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि अपने आप को जान लेता है। पीछे एक दुनिया के हालात देखते हुए कहीं पढ़ने को मिला कि सफर में चंद लोग जा रहे थे, तो आपस में बात चल पड़ी। सब बताने लगे, मैं हिंदू हूँ, इस शहर से आता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, किसी ने कहा मैं ईसाई हूँ। अपनी अपनी इंट्रोडक्शन सब दे रहे थे। तो सामने से एक यात्री कहता है कि मैं तो नास्तिक हूँ। तो सारे बोलते हैं, हिंदू नास्तिक है या मुसलमान नास्तिक है? There was a group of people traveling together and they were introducing themselves. One said that I'm a Hindu, the other said I'm a Christian, and so on and so forth. And one of them said that I'm an atheist. And the question that he was asked was that are you a Hindu atheist or a Muslim atheist or a Sikh atheist or a Christian atheist? वहां भी जिसने त्याग दिया इस भगवान को, वहां पे भी कि बेशक भगवान को त्याग दे, पर मेरा वाला है या इसके वाला है?
इंसान बंध चुका है इस जाल में, बाहर आना कठिन होता जा रहा है। नफरतें जन्म ले रही हैं, बिना किसी की मेहनत किए नफरतें जन्म लेती जा रही हैं। छोटी छोटी ये जो बातें, छोटे छोटे ऐसे कंडीशनिंग्स किस प्रकार हमारे जीवन पर जोर डालते हैं, किस प्रकार हमारे जीवन को चलाते हैं, हमें इस बात का एहसास भी नहीं हो पाता है। These conditionings have driven humanity to a point where a peaceful world seems like a distant dream. We see how the recent events affecting the entire global community, and despite that, there's no relief. This is where we are heading. And although a lot of us may say that we don't have any say in those geopolitical matters, but we have a say in the world that we create for ourselves. वो जो युद्ध चल रहा है, वहां जंग रुकेगी कि नहीं, शायद वो मुकाम मेरा नहीं है, शायद वो डिसीजन लेने की मुकाम पर मैं नहीं बैठा हुआ, पर मेरे जीवन में युद्ध चलेगा या शांति होगी, मेरी जो दुनिया है उसमें युद्ध होगा या शांति होगी, इसका डिसीजन, इसका चुनाव, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा है। Whether the world that I create for myself will be a world full of peace and love, or war and hatred, and that war isn't happening on a battlefield far away. It is happening every moment, every day, in my own head, in my own heart. And it is up to me whether peace will prevail or whether this war is going to continue. Every moment, I'm fighting my own self over something. Every moment, I'm fighting my own failures, my own desires. I'm setting my own standards, trying to meet them. And if I do, I'm happy. And if I don't, then I've declared myself a failure. There's a quote which says that we are more afflicted in the mind, we are more afflicted in thought than in fact. कि हम अपने ख्यालों में ज़्यादा पीड़ित हैं, हम अपनी सोचों में ज़्यादा पीड़ित हैं, पर सच्चाई इतनी खराब नहीं है। मेरी बनाई हुई दुनिया है, मैं इस दुनिया में क्या बनाता हूँ, क्या चाहता हूँ, कैसी दुनिया अपने लिए बनाना चाहता हूँ, चैनो अमन वाली या परेशानियों वाली। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, हम सब हेल्थ कॉन्शियस आजकल सुनते हैं, सब कोशिश कर रहे हैं जैसे कल दिखते थे उससे बेहतर दिखने की, कल जितना वजन था उससे थोड़ा कम हो जाए इसकी। जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं। अब बड़ी छोटी सी बात, पर एक यही लड़ाई हमारे मन की, क्योंकि मन ही इस लड़ाई का कुरुक्षेत्र भी है, मन ही इस लड़ाई का राम भी है, रावण भी है। मन में ही ये युद्ध चल रहा है, मन में ही ये शांति होनी है। तो कभी अगर ख्याल हो कि मीठा नहीं खाना क्योंकि ठीक थोड़ा वजन कम करना है, पर मन पसंद मीठा आ जाता है सामने, तो मन खुद को ही समझाता है कि चलो एक हफ्ते से नहीं खाया, आज थोड़ा सुबह उठा था तो पतला भी लग रहा था, और फिर जब आता है तो मन से परमिशन लेके एक दो चम्मच खा लेते हैं। अब मन को परमिशन देने वाला भी मैंने बनाया, मन से परमिशन भी मैंने ली,
और मन से परमिशन लेके 2 चम्मच भी मैंने खा लिए। और फिर उस दिन 2 चम्मच की और परमिशन भी मैं दोबारा ले लेता हूँ। और फिर मैं शीशे के आगे जाके खड़ा हो जाता हूँ उसी शाम को, ये गलती हो गई, नहीं खाना चाहिए था, इन 2 चम्मच से ही पेट भर आ गया है। मन, पतले होने का ख्याल भी इसी मन ने बनाया। उस मिठाई को देख के परमिशन देने वाला अफसर भी ये मन बन गया। मिठाई को खा के परेशान होने वाला भी ये मन बन गया। एक छोटी सी, सिर्फ छोटी सी बात जो रोज घटती है हमारे साथ, वहां पर भी एक युद्ध है अपने ही बनाए हुए बातों का, अपने ही बनाए हुए नियमों का, अपने ही बनाई हुई सच्चाइयों का, अपनी ही बनाई हुई दुनिया का। संत भक्त सिर्फ और सिर्फ जागृत कर रहे हैं, ये मन मैं नहीं हूं, ये मन मेरा अस्तित्व नहीं है। आई एम नॉट दिस माइंड, माई एग्जिस्टेंस इज नॉट दिस बॉडी, दिस माइंड। आई एम दिस लिमिटलेस, आई एम दिस बाउंडलेस। इस निरंकार का मैं अंश हूं। ये खेल एक चल रहा है, इस खेल को खेल की तरह खेल जाएं, इस खेल को खेल की तरह देख लें, तो जीवन सुंदर बनता चला जाता है। The moment I realize who really am I, the way I live, the way I see this world changes entirely. And this is not a thing of scriptures of the past or of mythology. It can happen right here, right now, for anyone who seeks this truth has the potential to realize this truth. How I often say that every seed has the potential to become a tree. Every seed comes into the world with the potential to become a tree. But it first needs to be ready to be buried in the ground, to accept the darkness in the ground before it becomes a tree. Surrender itself. And so does every being has the potential to be divine. Every human has the potential to be divine. I should have the utmost desire to realize this divinity, the utmost desire and humility to seek this truth. तो अंत में यही भाव के ये मानव जन्म मिला है। हम पढ़ते हैं बार बार शास्त्रों में, वेदों में, संतों की वाणी सुनते हैं, बहुत अनमोल है, बहुत ही अनमोल, पर इसका मूल डालने की जिम्मेवारी हमारी है। एक एक मानव अपने जीवन का खुद मूल डाल सकता है। संत आवाज दे रहे हैं, चेतन कर रहे हैं, सदगुरु धरा पर आकर कृपा कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, पर जागने की जिम्मेवारी हर एक इंसान की अपनी, मूल डालने की इस मानव जन्म की सबकी जिम्मेवारी अपनी। और दातार ऐसी मेहर करे कि सभी ऐसा मूल डालें इस मानव जन्म का कि मानवता खिल उठे, मानवता ही एक धर्म बन जाए, मानवता की सेवा ही धर्म बन जाए। May we all realize this truth so that humanity becomes the one true religion that binds us all. Love becomes the language, love becomes the foundation of all our relationships. Our maybe rise above the labels of being whoever we are right now and rise above them to become humans. Saints say with love, Dhan Niranकार.